حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، درد، صبر اور حق کی داستان۔ وہ منحوس رات، سن 40 ہجری، رمضان کا مہینہ، سحر کا وقت۔ کوفہ کی فضا میں سکون تھا، لوگ نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روز کی طرح مسجد کی طرف تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، قسم ہے رب کعبہ کی، میں شہادت کا منتظر ہوں۔ اسی وقت ایک بدبخت شخص، عبد الرحمن ابن ملجم، جو خوارج میں سے تھا، مسجد میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی نے سجدہ کیا، اس شخص نے زہریلی تلوار سے وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ سر مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، اور وہی پیشن گوئی پوری ہو گئی، داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام لیتی ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے، جن کی بہادری، علم، تقوی اور عدل کی مثال قیامت تک دی جائے گی۔ وہ ہیں امیر المومنین، شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جب انصاف، صبر اور قربانی کا ایک باب خون سے لکھا گیا۔ شروعاتی زندگی اور مقام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا اور ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو یا خندق، ہر جگہ آپ کی تلوار نے اسلام کی حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مشہور پیشن گوئی بھی آپ نے فرمائی تھی کہ اے علی، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ جملہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، مگر وقت نے دکھا دیا کہ یہ الفاظ حق تھے۔ اس دور کے حالات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حالات آسان نہیں تھے۔ جمل اور صفین جیسی جنگوں کے بعد مسلمانوں میں فتنے نے سر اٹھا لیا تھا۔ خاص طور پر خوارج نام کا ایک گروہ جو اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا، مگر اصل میں گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ انہوں نے نہ صرف آپ کے فیصلوں پر اعتراض کیا، بلکہ آپ کو نعوذ باللہ کافر تک کہنے لگے۔ مگر حضرت علی کا انداز دیکھیے، آپ صبر کرتے، نصیحت کرتے، سمجھاتے، مگر تلوار صرف تب اٹھاتے جب حق پر حملہ ہوتا۔ وہ منحوس رات، سن 40 ہجری، رمضان کا مہینہ، سحر کا وقت۔ کوفہ کی فضا میں سکون تھا، لوگ نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روز کی طرح مسجد کی طرف تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، قسم ہے رب کعبہ کی، میں شہادت کا منتظر ہوں۔ اسی وقت ایک بدبخت شخص، عبد الرحمن ابن ملجم، جو خوارج میں سے تھا، مسجد میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی نے سجدہ کیا، اس شخص نے زہریلی تلوار سے وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ سر مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، اور وہیں پیشن گوئی پوری ہو گئی، داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ رونے لگے۔ کچھ لوگ حملہ ور کو پکڑنے دوڑے، مگر اس وقت بھی حضرت علی کی زبان پر صبر تھا۔ وہ جملہ جس نے تاریخ بدل دی۔ زخم لگنے کے بعد آپ نے فرمایا، فزتو و رب الکعبہ، یعنی کعبہ کی رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ سوچئے، جس شخص پر جان لیوا حملہ ہوا ہو، جس کے سر سے خون بہہ رہا ہو، وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کس چیز کی تھی؟ یہ کامیابی تھی شہادت کی۔ یہ کامیابی تھی اپنے رب سے ملنے کی۔ یہ کامیابی تھی اس وعدے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کوفہ کا ماتم۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین پر حملہ ہوا ہے تو پورا کوفہ رو پڑا۔ مسجد میں سناٹا اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دوڑتے ہوئے آئے۔ اپنے والد کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر حضرت علی نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو میرا فیصلہ میرا ہوگا، اور اگر شہادت نصیب ہو گئی تو قاتل کے ساتھ انصاف کرنا، اسے بھوکا پیاسا مت رکھنا۔ دیکھیے، جس شخص نے جان لینے کی کوشش کی، اس کے لیے بھی انصاف کی وصیت۔ یہاں تک تھا وہ دردناک منظر
जहां शहादत का सूरज उगने वाला था। आखिरी लम्हात। जहरीली तलवार का असर बढ़ता जा रहा था। सर मुबारक का जख्म गहरा था। 2 दिन तक तकलीफ रही, मगर लबों पर सब्र और आंखों में रजा थी। आप बार बार अपने बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को नसीहत फरमाते रहे। नमाज का ख्याल रखना, अल्लाह से डरते रहना, यतीमों के साथ रहम करना और जालिम के मुकाबले में मजलूम का साथ देना। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी अदल और इंसाफ सिखाया, वो आखिरी वक्त में भी उम्मत को वही पैगाम दे रहा था। रूह की परवाज। 21 रमजान 40 हिजरी की सुबह वो लम्हा आ गया। अमीरुल मोमिनीन की रूह अपने रब से जा मिली। घर में सन्नाटा छा गया। कूफा की गलियां रो पड़ी। मस्जिद कूफा में सिसकियां गूंज उठीं। जिस शख्स ने कहा था फुस्तु व रब्बिल काबा, आज वो सच में कामयाब हो चुका था। तदफीन और एहतियात। हालात ऐसे थे कि दुश्मनों का खतरा मौजूद था, इसलिए आपकी तदफीन रात की तारीकी में की गई। बहुत कम लोगों को जगह का इल्म था। रिवायतों के मुताबिक आपको नजफ के इलाके में दफन किया गया, जहां आज आपका मजार अकीदतमंदों के लिए मरकज बना हुआ है। अहले मक्का और सहाबा का गम। जब शहादत की खबर हिजाज पहुंची, मक्का और मदीना के मुसलमानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते थे, आज इल्म का दरवाजा बंद हो गया, आज बहादुरी का परचम झुक गया, आज अदल का सूरज गुरूब हो गया। कई बुजुर्ग सहाबा रोते हुए कहते थे कि अली जैसा इंसाफ करने वाला हाकिम हमने नहीं देखा। आपकी फिक्र भरी जिंदगी, आपका सादा लिबास, आपका रातों को गरीबों के घर खाना पहुंचाना, ये सब याद करके लोग बिलख उठते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशंगोई की तकमील। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि ए अली, एक शख्स तुम्हारे सर पर वार करेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। जब वो वक्त आया तो सहाबा को वो अल्फाज याद आ गए। सबने कहा, ये वही पेशंगोई थी जो आज पूरी हो गई। इससे बढ़कर सच्चाई की दलील क्या होगी कि नबी का कहा हुआ लफ्ज बल्फ्स पूरा हुआ। कातिल के बारे में वसीयत। जब अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम को पकड़कर लाया गया तो लोगों के दिलों में गुस्सा था, मगर हजरत अली ने फरमाया, उसे वही खाना देना जो मुझे दिया जाता है। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरा फैसला मेरा होगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो बस एक ही वार करना, ज्यादती मत करना। ये थी इस्लाम की तालीम। ये था इंसाफ कि अपने कातिल के साथ भी हद से आगे न बढ़ा जाए। उम्मत पर असर। आपकी शहादत ने उम्मत को हिलाकर रख दिया। मुसलमान समझ गए कि फितना कितना खतरनाक होता है। इल्म, सब्र और अदल का जो नूर था, वो एक बड़ी आजमाइश में तब्दील हो गया। मगर आपकी जिंदगी और शहादत दोनों एक पैगाम दे गईं कि हक पर डटे रहना ही असली कामयाबी है, कि मौत से डरना नहीं बल्कि अपने रब की रजा तलाश करनी है, कि इख्तिलाफ को फितना न बनने दिया जाए। एक मुकम्मल दास्तान का खुलासा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत कोई मामूली वाक़या नहीं, ये इस्लाम की रूह का इम्तिहान था। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जिसने अपनी जान, अपना घर, अपना सुकून सब कुछ दीन के लिए कुर्बान किया, वो आखिरकार सजदे की हालत में शहीद हुआ। क्या इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है? आज भी जब 21 रमजान आता है, दिल नम हो जाते हैं और ज़बान से यही निकलता है, ए शेर ए खुदा।
आपने सच में कामयाबी हासिल कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के सबक, अदल, हिकमत और सब्र की रोशन मिसाल। आज हम शहादत के गम से आगे बढ़ते हुए उस रोशनी की तरफ रुख करते हैं जो हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से फैलती है। उनकी शहादत एक दर्दनाक वाक़या है, मगर उनकी जिंदगी उससे भी बड़ी दास्तान है। वो दास्तान अदल की, इनकी, सब्र की और अल्लाह की रजा पर राजी रहने की। एक अदल, इंसाफ जो अपने खिलाफ भी हो। हजरत अली का सबसे बड़ा वस्फ था अदल। आप जब खलीफा बने तो बैतुल माल का माल बराबरी से बांटते थे। किसी कबीले, रिश्तेदारी या दोस्ती को तरजीह नहीं देते थे। एक मशहूर वाक़या है, जब आपके भाई अकील ने ज्यादा माल की दरख्वास्त की तो आपने इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि अगर ये माल मेरा होता तो भी बराबर बांटता। ये तो उम्मत का अमानत है। सोचिए, अपना सगा भाई सामने हो, मगर इंसाफ का दामन न छोड़ा जाए। आज के दौर में ये सबक कितना बड़ा है। 2 इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हजरत अली फ़िक़्ह, तफसीर, अरबी अदब और क़ज़ा न्याय में बेमिसाल थे। बड़े बड़े सहाबा मुश्किल मसाइल में आपसे मशविरा करते थे। आपका हर जुमला हिकमत से भरा होता था। आप फरमाते थे, लोग 2 किस्म के हैं, या तो तुम्हारे दीन में भाई हैं या फिर इंसानियत में तुम्हारे जैसे। ये जुमला आज भी इंसाफ और इंसानियत का उसूल है। 3 सब्र, फितनों के दौर में इस्तिकामत। आपके दौरे खिलाफत में फितने उठे, जंगें हुई, इल्जाम लगे, मगर आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जब लोग आपके खिलाफ नारे लगाते, तब भी आप बद्दुआ नहीं देते। जब ख्वारिज ने बगावत की, तब भी आपने पहले दलील और नसीहत को तरजीह दी। ये सब्र बताता है कि असली बहादुरी तलवार उठाना नहीं, बल्कि गुस्से को काबू में रखना है। 4 सादगी, हुकूमत में भी फक्र। आप इस्लामी रियासत के अमीर थे, मगर खाना सादा खाते, कपड़े पैबंद लगे पहनते, रातों को गरीबों के घर राशन पहुंचाते। कई लोग नहीं जानते थे कि जो अनाज उनके दरवाजे पर रख जाता है वो खलीफाए वक्त खुद रख कर जाता है। ये सादगी सिखाती है कि ओहदा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, किरदार बनाता है। 5 मौत का यकीन, शहादत की आरज़ू। हजरत अली अक्सर फरमाते थे, मुझे उस शख्स का इंतजार है जो मेरी दाढ़ी को मेरे सर के खून से रंग देगा। ये अल्फाज डर के नहीं थे, बल्कि यकीन और रजा के थे। और जब वो लम्हा आया तो आपने कहा, फुस्तु व रब्बिल काबा। ये हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी हक पर गुजरी हो तो मौत भी कामयाबी बन जाती है। आज के लिए पैगाम, अगर हम हजरत अली की जिंदगी से सिर्फ 5 बातें ले लें, इंसाफ, इल्म, सब्र, सादगी और अल्लाह पर यकीन, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। उनकी शहादत हमें रुलाती है, मगर उनकी जिंदगी हमें संभालती है। आखिरी अल्फाज, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ तारीख का नाम नहीं, वो किरदार का पैमाना है। जब भी जुल्म दिखे अली को याद करो, जब भी इल्म की तलाश हो अली को याद करो, जब भी सब्र की जरूरत हो अली को याद करो। अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत से सीखने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है,
दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।